اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس لیکچر میں کنکریٹ ٹیکنالوجی اینڈ رینفورسڈ کنکریٹ ڈیزائن میں ہم شارٹکریٹ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے لاسٹ لیکچر میں شارٹکریٹ کے بارے میں پڑھا تھا، ڈیفینیشن کے بارے میں، اس میں ہم کیا یوز کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ چلو تو ان کو کچھ ریوائز کرتے ہیں۔ تو شارٹکریٹ کیا ہے؟ شارٹکریٹ کنکریٹ بھی ہو سکتی ہے، مورٹر بھی ہو سکتی ہے، جو ہم کسی پراپرلی پریپیئرڈ سرفیس پہ ہائی سپیڈ سے ہوا کے زیر اثر اپلائی کرتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شارٹکریٹ کہتے ہیں۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شارٹکریٹنگ۔ شارٹکریٹنگ کیا ہے؟ جب ہم کسی پراپرلی پریپیئرڈ سرفیس پہ مورٹر یا کنکریٹ ہائی سپیڈ سے ہائی پریشر کے زیر اثر اپلائی کرتے ہیں، اس کو ہم شارٹکریٹنگ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ چونکہ اگر اس میں ہم مورٹر استعمال کرتے ہیں تو اس شارٹکریٹ کو ہم اسپریڈ مورٹر بھی کہتے ہیں۔ اگر اس میں ہم کنکریٹ استعمال کرتے ہیں تو اس کو ہم اسپریڈ کنکریٹ بھی کہتے ہیں، شارٹکریٹ کو۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اسپریڈ کنکریٹ میں ہم جو میکسیمم سائز آف ایگریگیٹ استعمال کرتے ہیں وہ 12 mm سے لے کے 16 mm تک ہوتا ہے۔ اسی طرح اسپریڈ مورٹر میں جو میکسیمم سائز ہوتا ہے وہ 6 mm ہوتا ہے۔ گونائٹ کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح ڈرائی اسپریڈ کنکریٹ بھی ہوتا ہے، ویٹ اسپریڈ کنکریٹ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح ڈرائی اسپریڈ مورٹر بھی ہوتا ہے اینڈ ویٹ اسپریڈ مورٹر بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو ڈرائی اسپریڈ کنکریٹ ہوتا ہے اس کو کمرشلی کیا کہتے ہیں؟ گونائٹ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مارکیٹ میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ گونائٹ۔ کس کو؟ ڈرائی اسپریڈ کنکریٹ کو۔ اب شارٹکریٹ میں ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ تو جس طرح ہم نے پڑھا ہے، اگر ہم کنکریٹ استعمال کر رہے ہیں تو اس میں ہم پانی، سیمنٹ، فائن ایگریگیٹ اینڈ کورس ایگریگیٹ۔ اسی طرح اگر ہم مورٹر استعمال کر رہے ہیں، مورٹر اسپریڈ مورٹر استعمال کر رہے ہیں تو اس میں پھر کیا ہوگا؟ پانی، سیمنٹ اینڈ فائن ایگریگیٹ، اور مورٹر میں کورس ایگریگیٹ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ان چاروں چیزوں کے علاوہ ہم اس میں کچھ اور چیزیں بھی استعمال کرتے ہیں، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سپلیمنٹل فائن مٹیریل، یا اس کو ہم ایڈیٹیو بھی کہتے ہیں۔ مثال اس کے ہے سلیگ ہو گیا، فلائی ایش ہو گیا، سلیکا فیوم ہو گیا۔ یہ ہم اس شارٹکریٹ میں استعمال کرتے ہیں مختلف مقاصد حاصل کرنے کے لیے۔ کس مقاصد کے لیے؟ مثال کے طور پہ ہم جو شارٹکریٹنگ کر رہے ہیں اس میں ہمارے پاس جو فائن ایگریگیٹس ہے وہ کم ہے، ان کی کمی ہے، تو اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم ان ایڈیٹیوز کا استعمال کرتے ہیں۔ سلیکا فیوم، فلائی ایش، ان کا استعمال ہم ان خلا کو فور کرنے کے لیے جو فائن ایگریگیٹ کی کمی کی وجہ سے آئی ہے ان کو فور کرنے کے لیے ہم ایڈیٹیوز کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح شارٹکریٹ کی ڈیوریبلٹی کو بڑھانے کے لیے بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس میں ایڈیٹیوز کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح شارٹکریٹ کی پرمیبلٹی کو کم کرنے، تاکہ اس سے پانی پاس نہ ہو، اس کو کم کرنے کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ ایڈیٹیوز کا استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم ان کے لیے ہم یہ سپلیمنٹل فائن مٹیریل جسے ہم ایڈیٹیوز بھی کہتے ہیں استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح شارٹکریٹ میں ہم کیمیکل ایڈیٹیوز بھی استعمال کرتے ہیں، کیمیکلز بھی ہم شارٹکریٹ میں استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کیا ہے؟ ایکسیلریٹر۔ ایکسیلریٹرز یہ کیا ہے؟ یہ کیمیکل ایڈیٹیوز ہے۔ کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو شارٹکریٹ ہے یہ جلد پختہ ہو جائے، جلد ہارڈ ہو جائے، اس کی جو سیٹنگ ٹائم ہے وہ کم ہو جائے، تو اس لیے ہم اس میں کیا ایکسیلریٹرز استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سوڈیم کلورائڈ، جو عام گھر میں ہم جو نمک استعمال کرتے ہیں وہ بھی ہم ایز ایکسیلریٹر شارٹکریٹ میں استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح کیلشیم کلورائڈ ہو گیا، یہ ہم ایز ایکسیلریٹر استعمال کرتے ہیں۔ کس مقصد کے لیے؟ تاکہ کنکریٹ جلد سخت ہو جائے، اس لیے ہم اس میں کیا ایکسیلریٹر استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ ہم کب شارٹکریٹ میں ملاتے ہیں؟ یہ ایکسیلریٹر استعمال کرنے سے چند سیکنڈ پہلے۔
और फिर हम इसमें इस्तेमाल करते हैं प्लास्टिसाइजर्स। तो प्लास्टिसाइजर्स एंड वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सर्स क्या है? हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा स्ट्रेंथ हासिल करें और इसमें कम पानी इस्तेमाल करें। तो कम पानी पे हम ज़्यादा स्ट्रेंथ हासिल करना चाहते हैं, इसलिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इसलिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? प्लास्टिसाइजर एंड सुपर प्लास्टिसाइजर इस्तेमाल करते हैं। जिधर पानी की कमी हो, तो अगर हम चाहते हैं कि पानी तो नहीं, पानी लाना मुश्किल है, तो इसलिए हम इसमें क्या इस्तेमाल करें कि हमारे जो शॉटक्रीट है उस पर कुछ असर ना हो। तो इसलिए हम पानी की बजाय इसमें प्लास्टिसाइजर डाल देते हैं, कुछ पानी और कुछ इसमें प्लास्टिसाइजर। ठीक है। इसी तरह रिटार्डर्स भी होते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो शॉटक्रीट है ये जल्द पुख्ता न हो जाए, इसमें ये ज़्यादा टाइम ले पुख्ता होने में, तो इसलिए हम इसमें रिटार्डर इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह कि आम जो घर में हम शुगर इस्तेमाल करते हैं, चीनी, वो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इसी तरह हम स्टेबलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं ये शॉटक्रीट में। स्टेबलाइजर क्या मतलब, क्योंकि शॉटक्रीट क्या होता है, हम मोर्टर और या कंक्रीट को हम हाई स्पीड पे अप्लाई करते हैं किसी सरफेस पे, तो इसमें ज़्यादा चांसेस वो है कि इसके जो इंग्रेडिएंट्स है, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, वो एक दूसरे से अलहदा हो जाए। तो हम चाहते हैं कि ये एक दूसरे से अलहदा न हो, तो इसलिए हम इसमें स्टेबलाइजर इस्तेमाल करते हैं। स्टेबलाइजर की वजह से इनमें जो कोहेसिव फोर्सेस होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इसमें डिग्रेडेशन या सेग्रीगेशन अकर नहीं होती। ठीक है। इसी तरह हम ये इस्तेमाल करते हैं। एक होता है फाइबर रिइंफोर्स्ड स्प्रेड कंक्रीट। ऐसा स्प्रेड कंक्रीट, वो कंक्रीट जिसको हम स्प्रे करते हैं उसको स्प्रेड कंक्रीट करते हैं। फिर जिस स्प्रेड कंक्रीट में हम फाइबर्स का इस्तेमाल करते हैं, फाइबर रेजा, रेजा को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? फाइबर। ठीक है। तो जब हम स्टील के या किसी और चीज के फाइबर्स कंक्रीट में इस्तेमाल करते हैं, उस कंक्रीट में जो जिसको हम स्प्रे करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? फाइबर रिइंफोर्स्ड स्प्रेड कंक्रीट कहते हैं। और ये फाइबर स्टील के भी हो सकते हैं या ये सिंथेटिक फाइबर भी हो सकते हैं। किधर हम इस्तेमाल करते हैं? जिस तरह हम टनल्स बना रहे हैं तो उधर हम ये फाइबर रिइंफोर्स्ड स्प्रेड कंक्रीट इस्तेमाल करते हैं, या माइनिंग करें कानकनी में भी हम ये फाइबर रिइंफोर्स्ड स्प्रेड कंक्रीट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब मेथड्स हम ये शॉटक्रीटिंग किस तरह करते हैं, इसके लिए तरीके क्या है? तो इसके लिए सबसे पहले दो तरीके हैं किस लिहाज से मशीन यूज करने के लिए। अगर आप मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको मैकेनाइज्ड तरीका कहेंगे। अगर आप मशीन इस्तेमाल नहीं हाथ से कर रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? मैनुअल। ठीक है। मैनुअल मेथड जिसको आप हाथ से करते हैं। अगर आप मशीन से शॉटक्रीटिंग कर रहे हैं तो इसको हम मैकेनाइज्ड मेथड कहेंगे। अब इधर आते हैं तो मशीन मेथड की भी फिर दो किस्म है। एक है वेट मिक्स शॉटक्रीटिंग, एक है ड्राई मिक्स शॉटक्रीटिंग। आप देख सकते हैं ये है मैकेनाइज्ड स्प्रेइंग ऑफ वेट मिक्स। वेट मिक्स वो होगा, इधर आप देख सकते हैं इस येलो पिक्चर में, ये जो आप देख सकते हैं वेट मिक्स वो होता है जिसमें ऑलरेडी से पानी मिला हुआ होता है। ठीक है। तो उसको हम वेट मिक्स कहते हैं। और जिसमें ऑलरेडी पानी नहीं मिला होता, तो और पानी हम जब ये कंक्रीट नोजल से बाहर निकलता है, नोजल से, तो उधर हम इसमें पानी डालते हैं, तो इसको हम ड्राई मिक्स कहते हैं। जिस तरह आप इसमें इधर आप देख सकते हैं। ठीक है। इधर आप देख सकते हैं ये वेट मिक्स में इधर पहले पानी इसमें हमने डाला है इस कंक्रीट या मोर्टर में। इधर हमने तो इधर आप लोग देख सकते हैं, इधर इसमें मशीन के जरिए हम शॉटक्रीटिंग कर रहे हैं, लेकिन इस मशीन में हम जो मिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो वेट मिक्स है। वेट मिक्स का मतलब यह है कि इसमें पहले से पानी मिला हुआ है। ठीक है। और एक अगर हम मशीन से शॉटक्रीटिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर ये मिक्स में ऑलरेडी से पानी नहीं मिला हुआ, जब पानी इस नोजल से निकलता है, जब ये कंक्रीट इस नोजल से निकलता है, तो फिर इसमें हम पानी मिलाते हैं, एट द एंड हम पानी मिलाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं?
ड्राई मिक्स कहते हैं। इसी तरह आप मैनुअली भी करते हैं। मैनुअली अगर आप हाथ से इस तरह करते हैं और वेट मिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी इसमें ऑलरेडी पानी मिला हुआ है शॉटक्रीट में, तो इसको हम क्या कहेंगे, मैनुअल स्प्रेइंग ऑफ वेट मिक्स। इसी तरह अगर आप हाथ से शॉटक्रीटिंग कर रहे हैं और इसमें जो मिक्स आप इस्तेमाल करें वो ड्राई मिक्स है, मीन्स इसमें ऑलरेडी पानी नहीं मिला हुआ, तो इसको हम क्या कहेंगे, मैनुअल स्प्रेइंग ऑफ ड्राई मिक्स। तो ये ठीक है। तो मेथड, अगर आप मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको आप क्या कहेंगे, मैकेनाइज्ड स्प्रेइंग ऑफ मिक्स कहेंगे। अगर आप हाथ से करें तो इसको आप मैनुअल स्प्रेइंग ऑफ मिक्स कहेंगे। इसी तरह अगर आप ड्राई मिक्स वेट मिक्स इस्तेमाल करें तो इसको आप कहेंगे मैकेनाइज्ड स्प्रेइंग ऑफ वेट मिक्स या मैनुअल स्प्रेइंग ऑफ वेट मिक्स। इसी तरह अगर आप ड्राई मिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको आप मैकेनाइज्ड स्प्रेइंग ऑफ ड्राई मिक्स एंड मैनुअल स्प्रेइंग ऑफ ड्राई मिक्स कहेंगे। ठीक है। इसी तरह ये शॉटक्रीटिंग हम किधर करते हैं, जब हम, तो इधर आप देख सकते हैं, जब आप टनल कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, टनल सुरंग, तो उसमें आप चाहते हैं कि इसमें जिस पहाड़ में आप ये बना रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये बैठ न जाए, तो इसलिए इसको मजबूत बनाने के लिए आप इसके सरफेस पे शॉटक्रीटिंग करते हैं, टनल कंस्ट्रक्शन में आप इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर आप किसी खान में घुसे हुए हो, किसी खान में आप सोना वगैरह निकाल रहे हो, तो आप चाहते हैं कि आज आप पे ये जो रॉक है ये बैठ न जाए, तो उसको मजबूत बनाने के लिए इसमें हम क्या करते हैं, शॉटक्रीटिंग करते हैं। इसी तरह अगर आप डैम बना रहे हो या बैराज बना रहे हो, जो भी चीज़ बना रहे हो, और अगर आप चाहते हैं कि ये मजबूत हो जाए और ये जल्दी से पुख्ता हो जाए, मजबूत है, तो उधर भी हम क्या करते हैं, डैम में भी हम शॉटक्रीटिंग करते हैं, बैराज में वगैरह में जिधर पानी प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होता है, उधर हम शॉटक्रीटिंग करते हैं। इसी तरह अगर कोई डलवान जैसा हो, कोई पहाड़ हो या जो भी हो, और उसमें स्लिप होने का खतरा हो, तो उसको मजबूत बनाने के लिए भी हम शॉटक्रीटिंग करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टेबलाइजेशन ऑफ स्लोप्स कहते हैं। तो ये 4 मेन एरियाज है जिसमें हम शॉटक्रीटिंग करते हैं। इसी तरह शॉटक्रीट के कुछ खसूसियात होते हैं, तो उसमें क्या, शॉटक्रीट की एक खसूसियत है कि ये फ्लूइडिटी, इसमें फ्लूइडिटी होती है, ये एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकते हैं और इसकी वर्केबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। हम इसे स्प्रे करना चाहते हैं ना, तो स्प्रेइंग कंक्रीट क्या होगा, ये फ्लोएबल होगा ना। अगर ये सख्त होगा जिस तरह आम कंक्रीट होगा, तो इसको आप फिर स्प्रे नहीं कर सकते। ठीक है। तो कंक्रीट को आप जिस कंक्रीट को आप शॉटक्रीटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको आपने फ्लूइड बनाना होगा, उसकी फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी। इसी तरह शॉटक्रीट की एक और खासियत होगी अर्ली स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, इसमें स्ट्रेंथ जल्दी डेवलप होगा, स्ट्रेंथ इसमें जल्दी डेवलप होगा। ठीक है। एक और खासियत इसकी है। थर्ड खासियत, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी काफ़ी होती है। इसी तरह ये ड्यूरेबल भी होता है, ये देरपा भी होता है, ज़्यादा देर तक ये कायम रहता है। ठीक है। तो ये 4 खासियतें हैं जो इधर मेंशन की गई है शॉटक्रीट के, फ्लूइडिटी, अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। ये 4 खासियत हो गई इनके। तो आज हमने इस लेक्चर में शॉटक्रीट के बारे में पढ़ा, इसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में पढ़ा, फिर इसके लिए जो मेथड से उसके बारे में पढ़ा। तो 2 मेथड से, एक मशीन के ज़रिए और एक हाथ से। ठीक है। फिर हर मेथड के दो और पार्ट्स है, किस लिहाज से, आया हम वेट मिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं या ड्राई मिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह ये शॉटक्रीट हम इस्तेमाल किधर करते हैं, तो टनल्स कंस्ट्रक्शन में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्प्लेक्सेस में, स्टेबलाइजेशन ऑफ स्लोप्स में, माइनिंग में, खान्स में हम इस्तेमाल करते हैं। और इस शॉटक्रीट की खासियत क्या होती है कि इसमें इसकी हाई फ्लूइडिटी होती है, इसकी अर्ली स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होती है, इसमें जो स्ट्रेंथ डेवलप होता है वो बहुत जल्द डेवलप हो जाता है, और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो भी ज़्यादा होती है, और ये ड्यूरेबल भी होता है, देरपा भी होता है, ज़्यादा देर के लिए कायम भी होता है।